मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरी जर्नी है। ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਗਾਇਸ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਣਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਸਟ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੇਠ ਨਾ करो थोड़ा हाँ सिंपल। बट एनीवेज सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रेगनेंसी सीरीज जो काफ़ी टाइम से आप लोग कह रहे हो, काफ़ी है मतलब 2 साल हो चुके हैं इस बात को कि भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करो शेयर करो शेयर करो। तो फिर आज मुझे अभिजीत अत्री ने किया है पुश कि भाई अब कर दे, अब तो दूसरा आने वाला है तो पहले का एक्सपीरियंस कब बताएगी तू। सो आज की फर्स्ट जो हमारी इस सीरीज की वीडियो है वो है दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने बंदे सयाने और नाम के दीवाने, किसी हसीना से महाजबीना से, किसी हसीना से महाजबीना से दिल को लड़ाते हुए अखियां मिलाने बंदे 4 मस्ताने, अब 2 नहीं अब 4 मस्ताने चले जिंदगी बनाने। यस चलो एनीवेज हम चाहते हैं कि हमारी जो जर्नी है ये एक हैप्पीनेस के साथ शुरू हो जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज की जो पहली वीडियो है वो क्या है मिस्टर अत्री? सो जी पहली वीडियो ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ देयर ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ, ਵਾਟ ਆਰ देयर ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਨਾਰਮਲ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਪਲ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਜੂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ we will make these series ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ 1 ਬੇਬੀ ਐਂਡ ਅਨਦਰ 1 इज़ कमिंग। सो ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ शेयर। सो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आप पता है आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि एक मदर की 9 मंथ्स की जर्नी होती है तो अतरी साहब इत्थे की कर रहे हैं कि एक फादर इत्थे की कर रहेगा। बट जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो ये है कि अगर मदर की 9 मंथ की जर्नी है वो फिज़िकली होती है, बट एक फ़ादर की जो 9 मंथ की जर्नी होती है वो मेंटली होती है। तो मैंने सोचा कि हम दोनों का एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है इस जर्नी में, तो हम दोनों बैठ के अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे रहे हमारे ये 9 मंथ्स। सो जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तो पहला तो आप गल करते हैं रिवील करने दी। सो हम स्टार्ट करते हैं जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बाय द वे हम यहाँ पर मनहीर की बात कर रहे हैं और मनहीर एक प्लान्ड बेबी है। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो सबसे पहले मैंने जाके अभी को बताया। मैं एक गल दसा इंटरप्ट कर रहे हैं, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਲਾਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਪਲਾਨਡ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਵੀਲ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਪਲਾਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਘਰੇ ਪਾਪਾ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ 360 ਡਿਗਰੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਕਿ
ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਟਸ 360 ਡਿਗਰੀ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂजेस ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਿਊਮਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਦਿਸ इज़ माय ऑब्जर्वेशन। तो जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने सबसे पहले जाके अभय को बताया, और अभय का जो रिएक्शन था वो एकदम नल था, मतलब ना जब होता ना शॉक हो जाना, क्योंकि किया ना प्लान करना इज़ डिफरेंट, जो चीज़ हो जाती है फिर एकदम सारी चीज़ें खुल जाती है कि क्या होगा कैसे होगा ये सब कुछ। प्लानिंग में भी ऐसा थोड़ी ना यार कि आप कोई एकदम आपका है ना हर चीज़ें तय हैं। प्लानिंग में भी बस चीज़ हो रही है और उसके बाद फिर आपको एक तरीके का सरप्राइज ही आता है ना। मेरा रिएक्शन नल इसलिए सीगा बिकॉज मेरी हैबिट नहीं है कि मैं पहला रिएक्ट करा। मैं जिमें स्कूल च पेपर भी है ना आते होते सी, तो सॉरी पंजाबी बहुत ज़्यादा ठेठ हो रही है ना। तो पेपर भी जब मेरे स्कूल में आते होते थे तो लोगों को शुरू में ही डर लगना शुरू हो जाता है ना। हफ्ता पहले तो सबको ही लगने लग जाता है, मेरे को डर लगता है एक रात पहले, उससे पहले मुझे डर नहीं लगता। तो पूरे 9 months डिलीवरी के एक दिन पहले तक आई वॉज ऑलवेज है ना फाइन, नो थिंग नथिंग। पर जब हम एक बार हॉस्पिटल में एंटर हो गए, पता है अगले दिन से प्रोसेस शुरू होगा, तो मेरा वो एक दिन पहले वाला ही फंडा है। उससे पहले मैं सोचता नहीं, एकदम टाइम आने पे सोचता हूँ, दैट इज़ द थिंग। और मैं ना एकदम ऐसी होगी कंफ्यूज यार कि मतलब मैंने इतनी खुशी की खबर दी है और आगे से कोई रिएक्शन नहीं आया है भी, क्या है मतलब ये क्या हो गया। क्योंकि क्या है, मैंने बहुत सी रील्स वगैरह देखी थी जिसमें रील्स में ना फादर को वो डिस्क्लोज करते हैं कि आई एम प्रेग्नेंट, यू आर प्रेग्नेंट, वाओ। तो ना ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा तो बड़ा ही एकदम सेटल सा, मतलब बोले भी नहीं कुछ, आए देखे अच्छा बस इन्ना। मैं क्या यार एक ही सीखा, मतलब मुझे लगा खुश नहीं है कि सारा कुछ था, मतलब आप डिस्कस करके चीज़ें बहुत टाइम में सोचती रही कि मैं खुश नहीं हूँ। हाँ सीरियसली। सो एनीवेज इस तरह मेरी जो प्रेगनेंसी रिवील थी अबे को वो ये थोड़ा सा हुआ था। बट उसके बाद जो फर्स्ट 3 months थे हमें कुछ नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि हमारे घर में आप सबको पता है मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है, मदर इन लॉ भी नहीं है, कोई बड़ा है नहीं जो मुझे गाइड कर सके। तो फिर चेरी थी, चेरी को मैंने बताया। चेरी भी आपको पता है वो भी बच्ची है, उसको भी क्या ही नॉलेज है, किसी को नहीं। मम्मी है, मम्मी ने मुझे किया गाइड, बट वो होता ना कि एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है इन लॉज में वो मिसिंग होने के कारण काफ़ी चीज़ें हमें खुद ही सारा कुछ करना पड़ा। तो फर्स्ट और दिवाली आने वाली सी अगस्त च मैंने पता चल अगस्त 2022 में, और अक्टूबर में दिवाली थी और हमारा था कि यार कि हमको घर भी जाना है पटियाला, तो कैसे ट्रैवल करेंगे। बट डॉक्टर ने इनिशियली कहा था आप ट्रैवल कर सकते हो। मुझे जो कहा गया था कि बेस्ट और सेफ जो होता है वो एयर ट्रैवल होता है, बट ये होता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग में थोड़ा सा रिस्क होता है, उस टाइम पे आप थोड़ा देख लेना, अदरवाइज़ आप ट्रेन में भी जा सकते हो। तो फिर हम लोग दिवाली पे गए। बाबू चाचा को तो हमने पहले ही बता दिया था कि ये हुए, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि चलो ठीक है। अभी हमारी जो अतरी फैमिली है वो भी ग्रो होना शुरू हो गई है, क्योंकि इनकी हमेशा यही थी कि यार जब से मम्मी पापा वो तुसी घर खाली, मतलब घर खाली हो गया सीगा, सानू सीगा साडा घर शुरू तो बहुत भरिया रहा है ना। बहुत लोग आप देखो एक ही घर में दादा दादी है ना, मैं चेरी, मम्मा पापा, पप्पी बुआ है ना। तो उस टाइम पे जब तक शादी हुई थी पप्पी, शादी के बाद भी पप्पी वो बहुत आए हैं घर पे है ना। तो उधर से सरोज बुआ आ जाते थे, उनके बच्चे 2 बच्चे उनके है ना, पप्पी बुआ के 2 बच्चे। साढ़े पिंडों कोई ना कोई हमेशा राम लुभाई मामी जी, एक सुमन मासी हुंदी साडी वो आ जाती हुंदी सीगी मक्खी तो है ना। तो मक्खी एक पिंड है ते मेरी दादी दा पिंड है। तो मतलब कोई ना कोई हमेशा चाचा जी की साइड पे है ना, सारे बच्चे बुच्चे फैमिली। उधर से अपना है खुशबू रूपम आप मिले हुए हो है ना, इनकी फैमिली। तो मतलब काफ़ी लोग होते थे। मतलब अगर हम लोग दिवाली का फंक्शन करते तो हमें बाहर वाले को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, घर दे बंदे ही इन्ने हो जाते सी कि साडा दिवाली का फंक्शन वधिया हो जाता सीगा। आपस दे विच असीं 25-30 जने हो जाते होंदे सीगे। सो स्लोली है ना, लाइफ है इवॉल्व होती है, तो घर खाली हो गया था। सो एटलीस्ट ये हुआ कि चलो है ना भरना शुरू। और पीछे हमारे चेरी भी आ गई मैं चेरी को मैं तुसीं साह ना लैण दिओ मैं कहा यार एक है होंदा ना कि जो तुसीं फ्री माइंडेड हुंदे हो उस टाइम ते होवे तो तुसीं भी अपने चाह है ना एज अ मामा पूरे करोगे। बट जदों तुसीं आप ही ऑक्यूपाइड हो
एंड आई वॉज ऑक्यूपाइड 3 ways, है ना। वन वॉज कि चलो प्रेगनेंसी असी पहुँच गई, हुण पटियाले मेरी शूटिंग आ गई। सो जो 3 मंथ्स थे वो तो इस तरह से निकले। फिर हम लोग चले गए पटियाला, वहाँ फिर हम लोगों ने दिवाली वगैरह सेलिब्रेट की, और उसके बाद हम लोग अभी पटियाला में ही थे और हमें एक फ़ोन कॉल आया कि जी हमारे जो बॉम्बे वाला घर है उसको आ गया है नोटिस, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है वो सारी रीडेप में जा रही है। तो मैं तो बहुत स्ट्रेस में थी, क्योंकि घर पे यार एक फ़ीमेल का मतलब हस्बैंड का होना तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बट अगर हस्बैंड अपने काम पे गया है तो कोई ना कोई तो मेरे पास होना चाहिए। बब्बू चाचा जी हैं, बट वो मतलब इस एज में इतना नहीं कर पाएंगे जितना एक लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो एक्सपेक्ट करती है। तो फीमेल भी नहीं थी कोई, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि कैसे मैं मैनेज करूँगी, क्योंकि साथ में अभी की शूटिंग थी उस टाइम पे, और साथ में घर टूट रहा था और घर ढूंढना भी था और शिफ्ट भी करना था, सारा कुछ एक साथ मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में आ गया। हाँ, तो बाकी अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि अभी का भी दिमाग मेरी तरफ था, क्योंकि क्या होता है ना प्रेगनेंसी में, यू नेवर नो क्या हो, अप्स डाउन्स होते हैं, कभी कुछ हो जाए तो कौन है मुझे जो लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, बट सेम टाइम ये सिचुएशन भी थी जो हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, बट फिर भी कहते ना दिल पक्का करके हैवी हार्ट नाल मैं कहा चलो यार हुन मैं देख लूँगी अपने नाल, मैं फुल प्रिकॉशंस लूँगी। बब्बू चाचा हैं, बाकी हमने ड्राइवर्स को ही बोल दिया कि इनकेस कुछ हो ऊपर नीचे तो आप हमेशा अलर्ट रहना। चेरी ने भी बीच में मेरे पास आ जाती थी, रहती थी, तो चेरी ने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। विक्की कंचन वो लोग भी आए थे मेरे पास, आई थिंक वो भी 20-25 दिन रह के गए थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। तो मतलब इस तरह से फिर मेरा वो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर था वो कट गया था, बट ये था कि अबे का दिमाग सारा मेरी तरफ था। क्या सिचुएशन थी मुझे बताओ। वो तो बहुत वैसा था कि मैं नहीं सोचना चाहती, क्योंकि हमारी अब वो जो शूटिंग थी ना वो प्लान हो गई थी मनाली में, एंड वो अरबाज खान सर और वो सब लोग, हम लोगों ने जाना था मनाली। अब मनाली जहाँ जाना था वो था सिसु से ऊपर जो ग्लेशियर है, मैं व्लॉग्स वगैरह भी बनाए, आप लोगों ने देखे होंगे, तो वहाँ था। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत पास है कि आप है ना 2 मिनट में आ जाओ, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है या बॉम्बे से भी अगर आना है तो वहाँ से तो आपको पहले तो ट्रैवल करके बाय कार आपको आना पड़ेगा आगे, है ना, कुल्लू तक। 3-3.5 घंटे का ट्रैवल वो हो गया। उसके बाद कुल्लू से फ़्लाइट लो वहाँ से चंडीगढ़ की, और वो फ़्लाइट कुल्लू से हार्डली चलती है, कोई कोई फ़्लाइट ही होती है जो चलती है, आपको हर फ्लाइट नहीं मिलेगी। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि भाई फिर आप ड्राइव करके 7-8 घंटे 10 घंटे की ड्राइव थी, आप पटियाला या मैं पटियाला पहुंचना था, तो आप पटियाला पहुंचो तो रोज़ शूट हो रहा है, सारा कुछ अच्छा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा डिले हो रहा है, बीच में बारिश, कई बार आपकी ये बर्फ़ गिर जाती थी तो थोड़ा लेट हो जाता था, तो बीच में एक दिन लेट हो गया, है ना। अब अगले दिन इसकी गोद भराई थी जिसमें जिस दिन गोद भराई सीगी, है ना, एकदम फ़ोन आया कि शूटिंग थोड़ी होगी ख़त्म, वो एक दिन 1-2 दिन उत्ते थले होगी सीगी। सो मैं गया डायरेक्टर साहब को, मैं कहा सर ये सीन अपन कल ले लेंगे, तो ही वॉज लाइक कि नहीं कल अगर नहीं हो पाया तो ये हम परसों लेंगे। मैं कहा सर परसों गोद भराई है ना, मेरी मिसेस, मेरे बेबी होने वाला है, तो मुझे पहुंचना बड़ा ज़रूरी है, तो प्लीज़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। पहले ही हम शेड्यूल से 5-6 दिन ऊपर चल रहे थे। मैं रोज ही पिछले 3 दिन था आई थिंक, होते स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही थी, हाँ, जिसकी वजह से इनका शूट डिले हो रहा था। और मैं शूट डिले की वजह से मैंने गोद भराई 21 तारीख को रखी थी यार, हाँ हाँ डे हाँ 21 हाँ को, हाँ हाँ क्योंकि हाँ उससे पहले था कि 15 को रखते हैं, फिर हाँ 15 से पोस्टपोन करके 18 को रखी, और उसके बाद फिर शूट नहीं हुआ, फिर मैंने 21 को की 21 उसको। को किया, तो हाँ। फाइनली 21 को जो था वो हो गई। 20 तारीख को ये जैसे तैसे कि मैं पहुंचे हो इन्ना तो पूछो, टायर पंचर, ये पंचर वो पंचर, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ऑब्स्टिकल्स ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ। सो मैं डायरेक्टर साहब को कहा, मैं कहा सर मेरा जाना बड़ा ज़रूरी है, तो ही वॉज लाइक कि अब वो सीन बड़ा इंपॉर्टेंट सीगा, है ना, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशनल सीन सीगा बहुत ज़्यादा, एंड ही वॉज लाइक मैं ना करना चाहता हूँ कि वो सुबह का टाइम हो, मुझे वो जिनमें हो सवेरे तारे तूरे जे टिमटम होंदे ने ना, वो कुछ ब्लू स्काई हुंदा, एक टाइम हुंदा, वो मैनू चाहिदा। तो जे वो कल नहीं हो पाया तो परसों आएगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो कहता नो इश्यूज़, आई कैन अंडरस्टैंड, है ना, बेबी हो रहा है, तो फिर हम वो बॉम्बे शूट करेंगे। सो हुण लालच मेरे मन च भी आया कि यार मैं इन्ना टाइम लाता इत्थे, वो इन्ना इंपॉर्टेंट सीन है जी, वो इत्थे शूट नहीं होया बॉम्बे दे विच, किसी स्टूडियो दे विच शूट करोगे तो ਉਹਦਾ इंपैक्ट ही खत्म हो जाएगा ना यार। तो फिर मैंने समझाया, मैं कहा मन देख जे ऐ होया तो करांगे, मैं कोशिश पूरी करूँगा। मैं कहा जे नहीं होया फिर मैं गोद भराई तो बाद सीधा चंडीगढ़ पहुँच जूँगा, या ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। बट एनीवेज मैं सैट ते पहुँचा, तो ਮੈਨੂੰ याद है वो
ਅਰਬਾਜ਼ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਰਬਾਜ਼ ਸਰ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਰਬਾਜ਼ सर वॉज प्लान किया बॉम्बे होना है सीन। तो मैं फिर गया, मैं सर वो सीन अभी करेंगे, तो कहते नहीं वो तो कह रहे थे बॉम्बे करेंगे। मैं सर मैं देखता हूँ सबसे सर से बात करता हूँ क्योंकि मेरा ऐसे ऐसे करके है डिलीवरी वाला, तो मुझे वैसे मैं चाहूँगा मैं जल्दी यहाँ पे ख़त्म करके जाऊँ। तो सर से बात की, वॉज लाइक कि ऐसे करते हैं कि ये जो समय है इस टाइम पे वो लाइट भी आ रही है, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬਲੂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲਡਨ ਆਵਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸ਼ੂਟ, ਐਨੀਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਤੇ ਆਊਗੀ ਫਿਲਮ, ਰੈਡੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਦੇ, ਤੂੰ ਚਲਾਈ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ, ਹਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਖਾਲੀ ਸੜਕ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਲਿਆ टायर। ਹੁਣ इनोवा ਦੇ ना थल्ले टायर होता है, उसमें चेन लगी होती है, तो उसने टायर तो खोल लिया। अब वो जो स्पेयर टायर खोलने के लिए निकाला तो वो जो उसके छेद में से चेन ऐसे कुंडी बन के फंस गई उसके छेद में, मतलब चेन ऐसे करके अटक गई। अब उसको हथौड़ियों से मार रहा है, वो निकल नहीं रही। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। ਜਿਵੇਂ ਆ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਡਬਲ ਚੇਨ ਜਾ ਕੇ ਐ ਫਸ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਧਰ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਸਪੇਅਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਰੱਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਅਤੇ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ, ਵੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਐਂਡ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਮਾਰੀ ਕੈਮਰੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੇਨ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਚੇਨ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਥੌੜੀ ਦੇਈ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹਨੇ ਹਥੌੜੀ ਫੜਾਈ, ਮੈਂ ਟੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਥੜ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਗਿਰਿਆ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਮਾਰਿਆ, ਥੋੜਾ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਵੜਨ ਨੂੰ। ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਚਿੱਕੜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਨ ਕਿਉਂ ਫਸੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਦੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਸੁੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ, ਲੈਟ ਲੂਟ ਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਮਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਗਨ, 12 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸ਼ਗਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਗਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। फिर उस तो बाद मैं एक्चुअली चली गई थी फिर ज़ीरकपुर, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि फ़र्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है वो मायके में होती है, तो ऑन रायकोट तो मैं नहीं रह सकती थी क्योंकि मेरा हॉस्पिटल जो था वो चंडीगढ़ में था, Cloud9। तो फिर मैं विक्की कंचन के यहाँ पर रुकी थी, और वो लोग फिर मुझे ले गए थे। और जो मेरे फिर लास्ट जो 3 मंथ्स थे वो भी बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे से उन्होंने देखा, ख्याल रखा, सब कुछ बहुत अच्छा गया। मम्मी ने मुझे आई थिंक 9th मंथ में ज्वाइन किया था, 9th मंथ में आई थी मम्मी मेरे पास। 2 मंथ्स तो मैं फिर वहीं पर थी, और चेरी भी बगल में ही है, और फिर मेरा आना जाना मिला नेड़े एक ऑलमोस्ट एक बिल्डिंग छड़ के ने, मतलब आई थिंक 50 मीटर का डिफरेंस भी मसा ही होना। और जब मेरा 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हुआ तो इन्होंने क्या किया, आपका शुगर टेस्ट होता है जिसमें आपको आई थिंक कुछ लीटर्स शुगर डाल के पिलाई जाती है, चेक करने के लिए कि आपका जो शुगर है वो
स्टेबल है या बढ़ा हुआ है, तो जिसमें मेरा शुगर थोड़ा बहुत आया है। और प्रेगनेंसी में शुगर जो होता है वो ऊपर नीचे होता ही है, नेचुरल है, very थोड़ी बॉडी natural। नेचुरली ये चीज़ों ਨੂੰ बट उन्होंने रिस्पॉन्ड करती है। उन्होंने कहा कि हम नहीं रिस्क लेंगे, तो उन्होंने फिर बोला तो था मुझे मेडिसिन लेने के लिए, बट मेरे फादर भी शुगर पेशेंट हैं, उनको तो बहुत सालों से वो शुगर की मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इतना नहीं है जितना उन्होंने मेडिसिन के लिए बोला है। बट येस, मेरा फास्टिंग शुगर लास्ट 3 मंथ्स चेक होता रहा, जो कि कभी थोड़ा बहुत ऊपर होता था, जो कि नेचुरल है। मेरे को डॉक्टर ने शुगर की सारी चीज़ें लेने के लिए मना कर दिया। 3-3 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ? दूध भी पी रही थी और कितना? मैं नहीं, एक गिलास ही ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, हाँ हाँ 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ नहीं ਸੀ। नहीं, एक गिलास यार, एक पैकेट कितना का ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? 2-2 ਪੈਕੇਟ 3-3 ਪੈਕੇਟ नहीं ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ नहीं ਸੀ नहीं, ਅਮਨ। हाँ तो ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸਵੇਰੇ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੈਕੇਟਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਲੂ ਉਲੂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਾइट ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, बट बाय गॉड ग्रेस सारा कुछ बहुत ही बढ़िया रहा। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप योगा शुरू कर दीजिए, तो फिर मैंने 8th मंथ के एंड में जाके योगा स्टार्ट किया। वॉक मेरी 2 किलोमीटर्स होती थी एवरी डे। और 9th मंथ में जाके डॉक्टर ने हमें डेट दे दी थी कि इस डेट को हम लोग डिलीवर करेंगे अगर आपका नेचुरली लेबर पेन नहीं आया तो। सो उन्होंने मुझे कुछ ऑयल वगैरह भी दिया था, वो सारा मैं आपको आगे सब कुछ डिस्कस करूँगी। और कितने मंथ के बाद और वीक्स के बाद मुझे मनह्यूर हुई वो भी आपको आगे ही करूँगी। बट ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरी 9 मंथ की जर्नी थोड़ी ऐसी रोलर कोस्टर रही थी, जो कि बाकी जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, इन लॉज हैं, उनकी वजह से स्मूथ हो पाई। अदरवाइज़ मैं बहुत टेंशन में थी, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं और आप सबको पता है यार, प्रेगनेंसी में ना ओवर इमोशनल हो जाती है औरत, हर बात पे रोना आता है। आपने मेरे अगर पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, जब भी अभय जाता था ना मेरे को रोना आ जाता था। और जब एकदम पास में आया तो हमें कॉल आ गया वहाँ से कि बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जानी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फंडा हो गया था। तो फिर मैं भज्या ਸੀ, पर वो बेबी ਦੇ डिलीवर होने तो बाद फ्लैट ਆਪਾਂ चेंज ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। उनका कॉल आया था कि आपको पहले करना पड़ेगा। मैं कहा मेरे बेबी होने वाला है विदिन 2 weeks, हाउ कैन आई कम एंड जस्ट चेंज द फ्लैट? मैं कहा इट्स नॉट ईजी, इट विल टेक 1.5 month 2 months टू फाइंड अ फ्लैट एंड है ना गेट इनटू इट। तो मैं कहा आपको तोड़ना तोड़ दो घर के साथ, फिर सामान के साथ तुम्हारे। तो उन्होंने बोला नहीं आप फिर ठीक है बेबी के डिलीवरी के बाद आओ। फिर मेरे को याद है बेबी की डिलीवरी के बाद गया था। सो ये जो पूरी जर्नी थी ये बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर थी और बहुत इमोशनल थी, क्योंकि मुझे था कि अभय को तो मेरे पास होना ही होना है। और जब भी वो शूट वूट पे जाते थे तो थोड़ी सी ऐसा होता ना कि वीकनेस जी फील होना, भी कोई है नहीं, बंदा रोने का ही मन करता था, इतनी ज़्यादा इमोशनल। जब भी जीरकपुर आते थे अभय, तब तो मैं बहुत खुश होती थी, 2 दिन बाद चले जाते थे तो वही रोना धोना शुरू हो जाता था। बट ये थी मेरी 9 मंथ की जर्नी। आप ये सोचो जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनकी वाइफ्स, मतलब 6-6 महीने, कई बार बच्चा फादर के बिना आए हो जाता है यार। फादर कई बार बच्चा 1 साल का हो जाता तो मिलता जाके। बट उनके पास उनके इन लॉज तो होते होंगे ना कोई तो होता ही है ना। हाँ, कुछ लोगों के नहीं भी होते। हाँ, कुछ लोगों के नहीं भी ऐसा होते नहीं है हैं यार कि हमारे पास इस दुनिया का सारा प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के साथ है। सो बाकी की जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ बहुत जल्द अब शेयर करने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है वो, जो आगे interesting वाला है। भी इसके जो हम डिस्कस करेंगे ना आप लोगों के साथ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये जो 9th मंथ वाला लास्ट वाला है ना, इसमें बड़ी चीज़ें होती हैं आप लोगों को। आपका माइंड, क्योंकि अभी वो क्या पेपर बस अगले दिन ही है, वो वाला हिसाब, आपको थोड़ा डर भी लगना शुरू हो जाता है ना, थोड़ी आपको टेंशन भी होने लग जाती है। और आपकी मतलब इसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ होने लग जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल होता है उस टाइम पे। क्योंकि क्या है ना, ये 9 मंथ्स में यूट्यूब वीडियोस इतनी देख ली होती हैं प्रेगनेंसी की, हर किसी का एक्सपीरियंस सब कुछ हमले ऐसे होता है कि हमको सब कुछ आ गया है, बट अपना खुद का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। सो बाकी 8th मंथ तक तो मैंने सारा क्लैरिटी दे दिया। 9th मंथ बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर था, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल थी या सी सेक्शन था, और उसके बाद कौन से मंथ में हुई थी, पेन
क्या नेचुरली आया, लेबर पेन या इंड्यूस करना पड़ा, बहुत कुछ है मेरे पास आपको शेयर करने के लिए, वो एक वीडियो में हो नहीं पाएगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा क्योंकि यार। यही मेरी जर्नी काफ़ी लंबी हो गई है। तो मुझे था कि मैं शेयर करूं मेरे सेकंड बेबी होने से पहले, क्योंकि फिर उसकी जर्नी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो यहाँ से हमारी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होती है और आज की जो फर्स्ट वीडियो थी उसका एंड होता है। कुछ रह तो नहीं गया ना? नहीं, हो गया सारा, हो गया। हाँ, सारा कवर हो चुका है। यही था यार मेरी 8.5 9 मंथ्स की जर्नी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। टेक केयर, सत श्री अकाल, सायोनारा, बाय बाय। हालेलुया। इधर आओ, कम हियर। माय 9 मंथ्स की जर्नी है, मैं नीरू मेरा बेबी की है ना। अच्छा वो सुना दो, एक मोटा जॉर्जी। इधर आ, बाय कर दो। बाय, गुड नाइट।